हेलो। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 में टीचर्स ऑटोनॉमी एंड एकेडमिक फ्रीडम। इसके पूर्व में वीडियो नंबर 16 में टीचर्स ऑटोनॉमी के कुछ बिंदुओं को पर मैंने एक्सप्लेन किया था, बात किया था। आज उसके जो बचे हुए 2 बिंदु हैं उस पर ही बात करूँगा। मैं इसके पहले जो बताया था मैं एक बार बता दूं कि मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ टीचर ऑटोनॉमी मैंने बताया था। सेकंड में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टीचर ऑटोनॉमी के बारे में बात किया था। और तीसरा में बात किया था व्हाट टीचर्स ऑटोनॉमी इज नॉट, यानी क्या शिक्षक स्वायत्ता नहीं होना चाहिए, इन सभी के बारे में आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह 2 महत्वपूर्ण है शिक्षक स्वायत्ता के लिए। नंबर 1 इज नीड ऑफ टीचर ऑटोनॉमी, यानी शिक्षक स्वायत्ता की आवश्यकता। एंड अनदर वन इज रोल ऑफ टीचर्स ऑटोनॉमी इन हिज हर प्रमोशन, यानी शिक्षक स्वायत्ता को खुद ही कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है एक शिक्षक के लिए। जो भी शिक्षक यूनिवर्सिटी लेवल में या विद्यालय में पढ़ाते हैं, इनकी स्वायत्ता किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, ये अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके बिना जो है वह काम सही तरीके से नहीं हो सकता है। अगर शैक्षणिक विकास करना है तो शिक्षक स्वायत्ता अति आवश्यक है। तो आपने देखा कि मैं नंबर 1 फर्स्ट आई हैव डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ टीचर ऑटोनॉमी, फर्स्ट इन इंग्लिश मोड, आफ्टर दैट यू हैव डिस्क्राइब इन द हिंदी मोड। नीड ऑफ टीचर ऑटोनॉमी, few important point, that is number 1, teachers autonomy is essential for ensuring a learning environment that addresses children's diverse needs. Second one is teacher autonomy is driven by a need for personal and professional improvement so that an autonomous teacher may seek out opportunities over the course of his her career to develop further. Next one, an autonomous teacher feels personal responsibilities, attends workshop and come up with new classroom ideas. Next one is teacher autonomy refers to the ability to develop appropriate skills, knowledge and attitude for oneself as a teacher in cooperation with other. Next one is the teacher should have the freedom to innovate, to devise appropriate method of communication and activities relevant to the needs and capabilities of the concern of the community. Next one is autonomous teacher feel more confident with virtual learning environment. Teacher autonomy is necessary in order to be able to respond to student needs, interest and motivation and individualize our approach. All the above point indicates that it is most important for the need and in the present situation of the classroom teaching. According to NCF National Curriculum Framework 2015 states that teacher autonomy is essential for ensuring a learning environment that addresses children's diverse needs. As much as learner requires space, freedom, flexibility and respect, the teacher also requires the same. Now the next, teachers role in promotion of on autonomy. Some suggestions to promote the autonomy of teacher are as follows. Number 1, she should read a lot to be familiar with current subjects. Teachers should be able to observe himself. They should cooperate with others. It is really necessary to be open to criticism. Teachers should make notes at the end of lesson and evaluate them. Feedback by students may be given to the teacher. They should be given to an opportunity to develop his own autonomy. Teachers should be observe each other to give feedback. Peer observation in the mode, that means it is most important, vital for peer observation. Every careful lesson plan is required. One should be aware of his good and bad points or qualities. So all of you know that teacher's role, it's most important in the classroom situation, and this all the above point, it indicates that it is most important to teacher play a vital role for the promotion of its own autonomy. Now अब मैं
शिक्षक स्वायत्तता की आवश्यकता, जो मैं सबसे पहले इंग्लिश में बताया, मैं इसे हिंदी में बता दूं क्यों इसकी आवश्यकता है। बच्चों की विविध आवश्यकताओं, सीखने के माहौल को संबोधित करने के लिए शिक्षक स्वायत्तता आवश्यक है। शिक्षक स्वायत्तता व्यक्तिगत और व्यावसायिक सुधार की आवश्यकता से प्रेरित है, ताकि एक स्वायत्त शिक्षक अपने करियर के दौरान अवसरों की तलाश कर सकता है और आगे विकास भी कर सकता है। एक स्वायत्त शिक्षक व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को महसूस करता है, कार्यशालाओं में भाग लेता है और ऊपर आता है, नई कक्षा के विचारों के साथ साथ। शिक्षक स्वायत्तता से तात्पर्य उपयुक्त कौशल, ज्ञान और ज्ञान को विकसित करने की क्षमता से है, एक शिक्षक के रूप में दूसरे के सहयोग करने से भी है। नेक्स्ट वन, शिक्षक के पास उपयुक्त तरीकों को विकसित करने के लिए नवाचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि संचार और गतिविधियों की ज़रूरतें और क्षमताओं के लिए प्रासंगिक और समुदाय के लिए आवश्यक हों। स्वायत्त शिक्षक आभासी सीखने के माहौल के साथ साथ अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। छात्रों की ज़रूरतें, रुचियों का जवाब देने में सक्षम होने के लिए शिक्षक स्वायत्तता आवश्यक है, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण को प्रेरित और अलग करना भी आवश्यक होता है। अब इस संबंध में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कहा गया है कि शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक स्वायत्तता आवश्यक है और पर्यावरण जो बच्चों को विविध आवश्यकताओं को संबोधित करता है, जितना सीखने वाले की आवश्यकता होती है, स्थान, स्वतंत्रता, लचीलापन और सम्मान, शिक्षक को भी इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षक स्वायत्तता की आवश्यकता महाविद्यालय के विकास के लिए ये आवश्यक है, साथ ही साथ समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है, जिससे कि शिक्षक अपने विचारों को स्वतंत्र होकर पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षक स्वायत्तता को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक अपनी स्वायत्तता को स्वयं बढ़ावा दे सकते हैं। शिक्षक स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं। उसे वर्तमान विषयों से परिचित होने के लिए बहुत कुछ पढ़ना चाहिए। शिक्षक को स्वयं का निरीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। आलोचना के लिए खुला होना वास्तव में आवश्यक है। शिक्षक को पाठ के अंत में नोट्स बनाने चाहिए और उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। छात्रों द्वारा प्रतिक्रिया शिक्षक को दी जा सकती है। उन्हें अपनी स्वायत्तता विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को प्रतिक्रिया, सहकर्मियों अवलोकन देने के लिए एक दूसरे का निरीक्षण भी करना चाहिए। बहुत सावधानीपूर्वक पाठ योजना की आवश्यकता है, इसलिए इसे सिस्टमेटिक व विधिवत तरीके से तैयार करना चाहिए। व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे अंक या गुणों के बारे में पता होना चाहिए। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें थी, सहकर्मी अवलोकन, जो कि महत्वपूर्ण है, ताकि एक दूसरे के बारे में बात कर सके, बता सकें, जिससे कि उसका सही तरीके से डेवलपमेंट हो सके। तो आपने देखा कि मैं ये महत्वपूर्ण कुछ बातों को इस प्रकार से बताया, जो कि आवश्यकता और उनकी प्रमोशन से संबंधित था। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज नीड ऑफ टीचर ऑटोनॉमी एंड रोल ऑफ टीचर फॉर प्रमोशन ऑफ ऑटोनॉमी, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि शिक्षक स्वायत्तता से संबंधित है। उसके बारे में बिंदुवार हमने आपको बताया, और इसकी एक जैसे कि नीड ऑफ, उसमें आवश्यकता जो है यानी शिक्षक स्वायत्तता की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके सभी पॉइंट को आप अच्छी तरह से नोट करें, लिखें और एक अच्छा नोट्स तैयार करें। दूसरा जो था प्रमोशन ऑफ टीचर ऑटोनॉमी, यानी शिक्षक स्वयं ही कैसे भूमिका निभा सकते हैं, तो उसमें सहकर्मी का अवलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इसका समुचित तरीके से विकास हो सके, साथ ही साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो आप इस वीडियो को देखें, पसंद करें, इसको बिंदुवार नोट करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं शैक्षणिक स्वतंत्रता के बारे में बात करूँगा, यानी एकेडमिक फ्रीडम के बारे में बात करूँगा। धन्यवाद।